کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کرگل کے لوور پہاڑی سلسلے سے فوج انخلا کر دے گی۔ اس سلسلے میں کرگل کے لداخ خود مختاری پہاڑی ترقیاتی کونسل اور فوج کے درمیان ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ آرمی 6 مہینوں کے اندر علاقہ خالی کرنے کا عمل پورا کرے گی۔ اسے تاریخی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ LHDC کے CEO اور ڈپٹی کمشنر بصیر الحق چودھری اور کرگل کے بریگیڈیئر کمانڈر 121 انفنٹری ڈویژن بریگیڈیئر وویک بخشی نے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ پہاڑی ترقیاتی کونسل کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل فیروز احمد خان اور جنرل آفیسر کمانڈنگ بھی شریک رہے۔ معاہدے کے تحت آرمی کو مراٹھا یونٹ کے قریب کرباتھنگ اور ملبیق علاقوں میں متبادل زمین مہیا کرائی جائے گی۔ حکام نے کہا کہ اب کرگل کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ کرگل شہر کو نئے سرے سے ترقی دینے کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت کرگل شہر میں جدید سہولیات دستیاب کرانے کا منصوبہ ہے۔ پاکستان میں اقلیتی طبقہ ہزارہ شیعہ کے لوگوں کا قتل کیے جانے کے خلاف کرگل میں احتجاجی مظاہرہ منظم کیا گیا۔ انجمن جمعیت العلماء اثنا عشری نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بن گیا ہے۔ شدید سردی کے باوجود کئی لوگ اس مظاہرے میں شامل ہوئے۔ ریلی کرگل شہر کے مختلف حصوں سے ہوتی ہوئی گزری جو بعد میں جلسے میں تبدیل ہو گئی۔ مرتضی خلیلی نے خطاب کیا۔ دہشت گردانہ کارروائی کی مذمت کی گئی۔ مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ واقعے پر پاکستان کے ساتھ سخت احتجاج درج کرائے۔ پاکستان میں رونما ہوئے نسلی منافرت پر مبنی اجتماعی قتل کے واقعے کی ذمہ داری داعش نے لے لی ہے۔ پاکستان کی جانب سے ضلع راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پاکستانی گولہ باری کی زد میں آنے سے ایک تیندوے کی موت ہو گئی۔ محکمہ جنگلات نے سیر مکڑی نوشہرہ میں ایک LOC کے قریب تیندوے کی لاش حاصل کر لی ہے۔ وائلڈ لائف افسر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گولہ باری سے ہی تیندوے کی موت ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ برڈ فلو کی نشاندہی اور کنٹرول کے لیے کافی چوکسی برت رہا ہے۔ تاہم جموں کشمیر میں ابھی تک برڈ فلو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ پڑوسی ریاستوں میں برڈ فلو کا اثر دیکھے جانے کے بعد انتظامیہ نے درکار احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ پڑوسی ریاست ہماچل پردیش میں مردہ پائے گئے مہاجر پرندوں کے سیمپل میں H5N1 انفلوئنزا وائرس کی توثیق ہوئی ہے۔ اس کے بعد جموں کشمیر انتظامیہ نے فارسٹ اینڈ اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کو الرٹ کر دیا ہے۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے جموں کے گھرانہ ویٹ لینڈ خطے میں نگرانی کا عمل بڑھا دیا ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں پرندے عارضی قیام کے لیے پہنچتے ہیں۔ خطے میں پرندوں کی اعداد و اطوار میں ممکنہ تبدیلیوں کا مسلسل مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کے ماہر افسروں کی ٹیموں نے علاقے کا دورہ کر کے پرندوں کے سیمپلز اکٹھا کیے۔ وائلڈ لائف وارڈن انل کمار اتری نے بتایا کہ ویٹ لینڈ میں ابھی تک H5N1 انفلوئنزا کے کسی ایک کیس کی بھی نشاندہی نہیں ہوئی ہے۔ جو مائیگریشن کا ٹرینڈ رہا ہے ابھی تک کا برڈز کا، وہ یہی ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ دسمبر 15 تک میکسیمم اپروچ کر جاتے ہیں جہاں جہاں ان کو آنا ہوتا ہے۔ وہ نمبر ڈیلی لٹل بٹ فلکچویٹ کرتا ہے پر نمبر آلموسٹ کانسٹنٹ ہے۔ تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اب انورڈ جو ان کا آنا تھا وہ نہیں ہے۔ جو برڈز جو پراپر ان کا ایک ڈیسٹینیشن ہوتا ہے جہاں ان کو ریچ کرنا ہوتا ہے، وہ گھرانہ کے جو برڈز ہیں وہ آلموسٹ پہنچ چکے ہیں۔ تو ایسا ابھی تک ایسا کوئی رپورٹنگ نہیں ہے فیلڈ سے جہاں ایسا کوئی برڈ کا بیہیویئر نہیں دیکھا گیا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو انفلوئنزا کا کوئی کنٹامینیشن ہو سکتی ہے یا کچھ ہے۔ تو سارے برڈز ہیلدی ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف اینیمل ہسبینڈری جموں برڈ فلو وبا کی روک تھام کے سلسلے میں وائلڈ لائف حکام کا بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ دونوں شعبے کے افسران پولٹری فارمرز سے مسلسل ربط میں ہیں۔ جموں میں ڈائریکٹر اینیمل ہسبینڈری وویک شرما نے کمرشل پولٹری فارمرز کے ساتھ کئی بار میٹنگیں کی۔ بایو سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے حکام کی توجہ مرکوز رہی۔ شرما نے لوگوں سے کہا کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں۔ جموں کشمیر میں ابھی تک برڈ فلو کا کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ ہمارے جو بھی پولٹری فارمرز ہیں، اس پیشے سے جو بھی جڑے لوگ ہیں، ہم لوگوں نے انہیں بولا ہے کہ آپ لوگ اس میں ساودھانی برتیں اور بایو سیکیورٹی میجرز جو ہے اور بھی زیادہ لیں۔ حالانکہ جو بھی اس پیشے سے جڑے لوگ ہیں بایو سیکیورٹی میجرز وہ آلریڈی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو بولا ہے کہ آپ ان کا سختی سے پالن کریں۔ سے لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگ بے جھجک ہو کر پولٹری یا اس سے جڑی جو پولٹری پروڈکٹس ہیں ان کو لیں، لیکن اس کو لینے سے پہلے ان کو اچھی طرح سے پکا لیں،
क्योंकि ये जो वायरस है, जब आप किसी के फूड को अच्छे से कुक कर लेंगे तो ये उसमें मर जाता है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पोल्ट्री मुर्गियों की दरामदात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। 14 जनवरी तक के लिए बतौर एहतियात अनप्रोसेस्ड पोल्ट्री मीट की दरामदात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। बर्ड फ्लू के खतरात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दीगर रियासतों से चिकन से जुड़ी तमाम अशिया की दरामदात पर पाबंदी लगा दी है। डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री गुलाम अहमद लोन ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जम्मू कश्मीर में वबा के बायस किसी जानदार की हलाकत की अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि चिकन और अंडे खाने में कोई कबाहत नहीं है। जो बाहर का मसला है, हमें इनग्रेस हमने बंद कर दिया है। जैसे कि आपने सुना होगा, कल ही हमारे कमिश्नर साहब ने उनको बैन लगा दी है, एंट्री पॉइंट हमारा बंद है वहाँ से। लेकिन अभी ये तकरीबन एक हफ़्ता हमारा ये ऐसा रहेगा। इसमें जो अंडा या पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री मीट जो है, वो हम आराम से खा सकते हैं। एहतियात सिर्फ ये रखना है कि वाइल हैंडलिंग, जब पोल्ट्री को आप हाथ लगाओगे, पोल्ट्री बर्ड्स को ग्लव्स वगैरह लगा के हैंडल करने चाहिए। उसके बाद जब कुकिंग करेंगे तो वो ख़त्म ही हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सांबा में कृषि विज्ञान केंद्र का इफ्तिताह कर दिया गया। इदारे की इमारत का इफ्तिताह करने के लिए LG मनोज सिन्हा यहां पहुंचे थे। स्कॉट्स जम्मू के चांसलर प्रोफेसर JP शर्मा भी मौजूद रहे। ऐसे सेंटरों के जरिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़वायद पहुंचाने पर LG ने जोर दिया है। उन्होंने हमा अक़साम की फसलें लगवाने की किसानों को तरगीब देने की भी हिदायत दी। LG ने ज़राअत और काश्तकारी पर हिंदी में किताबें जारी करने की ख्वाहिश की। कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में एक नुमाइश का भी अहतमाम किया गया। इसमें हाइड्रोपोनिक्स, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और फार्म मशीनरी के अलावा आपाशी और तरकारियों की हमा अक़साम की जानकारियाँ मुहैया कराई गईं। तरक्की पसंद किताबों को तहनीत पेश की गई। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर सोगाम कुपवाड़ा की कई लड़कियों ने DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें 4 माह से ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन काम के एवज मुशाहरा नहीं मिला है। एहतजाजियों का इल्ज़ाम है कि उनके नाम मोटी रकम निकाली गई है, मगर उन्हें दी नहीं गई है। उन्होंने जांच का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। फोन त्रो पे त्रो टीचर त्रो मैडम मगर स्टूडेंटन त्रो गरीब खानदान कर ट्रेनिंग वन पानस मशीन त्रा अलग अलग करो कि कारबार मगर अ वातनो कहीं 4 सास रुपये 4.5 सास। हम डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रहे थे। हमने 4 मंथ्स वहाँ ट्रेनिंग की, लेकिन अब जब हमने ट्रेनिंग ख़त्म की तो उन्होंने पैसे भी नहीं भेजे, ना सर्टिफिकेट दे। DC साहब को बोला कि हमें अपने पैसे दो। उसने बोला हमने वहाँ यहाँ से रिलीज़ किए सोशल वेलफेयर। फिर हम सोशल वेलफेयर जब गए फिर उन्होंने भी पैसे रिलीज़ किए, लेकिन वो बोल रहा है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है आपके, हम हक चाहते हैं अपना। सोगाम का पर्टिकुलर इशू है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पर भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स 3 महीने का अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, जिसके अंदर स्टाइपेंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स, और यही हमने स्टूडेंट्स को भी समझाने की कोशिश की है। हाउएवर उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको डीपली देखने के लिए कोई और इशू ना हो, उसके लिए हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, और अगर उनका कोई भी ऐसा इशू है वो कमेटी को बता सकते हैं, ताकि फ्यूचर आने वाले ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर वो उसी कॉम्पोनेंट। GMC श्रीनगर के कई पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। उन्होंने ऑनलाइन इम्तहानात मुनक्किद करने या मास प्रमोशन देने की मांग की। इन डिप्लोमा याफ्ता तलबा का कहना था कि उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा है। उन्होंने LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। ये 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। सर, हमारी ये डिमांड है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहते हैं। ऑलरेडी हमारा वेस्ट टाइम हुआ है बहुत। हमें फर्स्ट सेम में ये रखा गया है और 3 साल हुए हैं आज तक। सर, जो भी प्रॉब्लम्स हुए कश्मीर में वो हमने नहीं की। सर, जो डिग्री होल्डर्स है उनकी ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए, उनकी डिग्री भी होगी कंप्लीट, और जो हम डिप्लोमा होल्डर्स है हम अभी वहीं फर्स्ट सेम में ही है। हम यही चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम हो या मास प्रमोशन। This is the 16th protest we have been here, and this is like nobody is here to listen. मेडिकल कॉलेज से जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट जाते हैं वहाँ बोलते हैं हियरिंग डेट, तो हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं आई। स्कॉट से फिशरीज साइंस की डिग्री याफ्ता ने श्रीनगर में एहतजाज किया। प्रमोशन के अलावा वो महकमे फिशरीज में बराह रास्त भर्ती की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे में भर्ती रूल्स के हवाले से खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम से इस मसले को हल करने और उनका मुस्तकबिल बचाने की अपील की है।
हमारा ग्रेव वायलेशंस हो रहा है। बेसिकली 2000 से 2017 तक अप्रॉक्सीमेटली 150 रिक्रूटमेंट प्रमोशंस हुई हैं, जिसमें से अगर हम देखें नॉन गेजेटेड क्राइटेरिया में 50% एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए था, मगर वो 50% एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है, जो कि हमारे लिए एक वायलेशन है। और हम फैकल्टी ऑफ फिशरीज़ के प्रोफेशनल्स हैं कि हम चाहते हैं कि हमें ये फिशरी डिपार्टमेंट में अपनी जगह मिले। ज़जिला टनल में मकामी नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने की मांग की गई है। द्रास के लोग इस सिलसिले में डाक बंगले में जमा हुए थे। लोगों ने मुतल्लिक़ अफसरान से गुजारिश की कि वो रोजगार की फराहमी के लिए कमेटियां तश्कील दें। टनल के तामीराती कामों से लोगों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। सरकारी हुकाम ने मीटिंग में कसीर तादाद में लोगों की शिरकत को खुशाइंद करार दिया। रोजगार मिले, इसमें बेरोजगारों को भी मौका कमाने का मिले और एक अच्छा रेट फिक्स हो जाए, इसमें कामों में धंधलियाँ नहीं चले, ताकि हम यहाँ द्रास के अंदर जो जोजिला टनल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इतना बड़ा 6,500 करोड़ का, इसमें हर किसी को कमाने का मौका मिला। हमारा यही मकसद था, इसलिए हमने ये मीटिंग बुलाया था। और आज ये कमेटी भी यहाँ पूरे अवाम ने आके, पूरे लोगों ने आके, चाहे वो ठेकेदार भाई हो, चाहे वो ज़मींदार भाई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आम मजदूर हो, उन सब ने कामयाब किया इस मीटिंग को। लोअर लेह के कांग्रेस काउंसलर मांगियाल ने कहा कि उन्होंने अवामी शिकायत का इजाला करने की गर्ज से फौज से रब्ता किया। मैट्रिक पास के बाद लद्दाखी लड़कों को मकामी स्काउट्स में भर्ती करने की मांग की गई। लद्दाखी स्काउट्स रेजिमेंटल में एहलकारों की तादाद बढ़ाने पर जोर दिया गया। CSD कैंटीन हफ्ते में 6 दिन खुली रखने की मांग की गई। सियाचिन ग्लेशियर के लिए पोर्टर्स फुल अनाउंस करने की मांग की गई। पुलिस और पोर्टर्स की बकाया तनख्वाह अदा करने को कहा गया। सद्भावना प्रोजेक्ट शुरू करने की गुजारिश की गई है। 10वीं कक्षा पास, खाली पास होना चाहिए, तब जाके आपको दाखिला मिलेगा, तो उसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 45% मार्क्स से बहुत सारे मेरे बच्चे जो लद्दाख स्काउट्स में भर्ती होना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। और जो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था, जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा एक बैटलफील्ड माना जाता है। 150 से 200 बच्चे लद्दाख के हर कोने से वहाँ पर काम करने जाते हैं, हमारी फौज को मदद करने जाते हैं, जिनका तनख्वाह 2016 से अभी तक नहीं बढ़ाया। जिला गांधरबल में बर्फबारी के बाद मामूल की जिंदगी वापस लौट रही है। तमाम अहम सड़कों और लिंक रोड से बर्फ हटाई गई है। कस्बे में बिजली बहाल हो गई है। कारोबारी सरगर्मियां फिर दोबारा बहाल हो गई हैं। यार मकाम, अंदरून, अखल और तहसील कंगन के कई दूर दराज इलाकों में अभी भी सड़कों से बर्फ हटाने का काम बाकी है। इन इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुसलसल मुतासर है। लोगों ने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। कस्बा गांधरबल के लोगों ने ताहम इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उड़ी सब डिवीजन में बर्फबारी की वजह से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर बराए शुमाली कश्मीर डॉक्टर सजाद शफी ने इंतजामिया पर अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से न निभाने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि इंतजामिया उड़ी में ज़रूरी खदमात की बहाली में नाकाम रही। उन्होंने सड़कों पर बर्फ हटाने, बिजली की बहाली और मुतासरीन को मुआवजा देने की अपील की है। उड़ी कस्बे में काफ़ी मकानात जो हैं इसकी जद में आए। कई जगहों पे जो हैं हमारे फलदार दरख्त जो थे, बिलखुसूस अखरोट के दरख्त, सेब के दरख्त, नाशपाती के दरख्त को काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है। हमारे कई गांव जो हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं है। कई गांव जो हैं वो कट ऑफ हैं, रास्ते बंद हैं। लोगों को पानी की वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं वो डैमेज हुई हैं। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से बिलखुसूस डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बारामूला और SDM उड़ी से मुतबाना अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके उड़ी सेक्टर में जहाँ जहाँ पे भी ये नुकसानात हुए हैं उनका जायज़ा लिया जाए फिलफोर और लोगों को माली इमदाद दी जाए। श्रीनगर शहर में बर्फबारी के दौरान जहां कई मकामात पर बर्फ हटाने में ताखिर हुई, वहीं शहर के बाग मेहताब इलाके में कारपोरेटर बशीर अहमद इस मुश्किल वक्त में इलाके में मौजूद रहे। बशीर ने कई मकामात पर खुद गली गली जाकर बर्फ हटवाई। वाज़ेह है कि यहाँ पर बर्फबारी के बाद कई गलियां पूरी तरह बंद थीं। कंजाबल पामपुर में रिसीविंग स्टेशन में खराबी की वजह से कई इलाकों में बिजली की किल्लत पाई जा रही है। शारशाली, कंजाबल और दीगर इलाकों में पानी की भी किल्लत पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वाटर सप्लाई स्कीमों में जनरेटर न होने की वजह से ये ठप हो गई हैं। बानीपुरा के तुलैल तहसील में बुडगाम, सरदाब और बुगंदर इलाके नामी इलाकों में बिजली फराहम करने वाले जनरेटर ख़राब हो गए हैं। इन इलाकों के लोग बिजली से महरूम हैं। उधर SDM गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी का कहना था कि सरदाब और
बुगलंदर के जनरेटर में मामूली नुक्स पैदा हुआ है तो रेल रोड खुलते ही इन जनरेटरों की मरम्मत की जाएगी। बडगाम के जनरेटर के कई दरकार सामान बांडीपुरा पहुंच गए हैं। जम्मू में दो रोज़ा कसीर ज़बानी 8 सेमिनार अख्ताम पजीर हो गया। इस सेमिनार का इनकाद एहसास ग्रुप ने KDP के इश्तराक से किया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई शोरा, अफसाना नवीसों, कलमकार और दीगर लोग इसमें शामिल हुए। इनमें कई नौजवान शोरा और कलमकार भी थे। मुंतज़मीन का कहना था कि इस प्रोग्राम से सभी खित्तों के अदब से वाबस्ता अफराद को एक दूसरे को समझने में काफ़ी मदद मिली है। उन्होंने मुस्तक़बिल में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने की बात कही। उनका कहना है कि इससे एतमाद बढ़ेगा और तीनों खित्तों के आर्ट, कल्चर और ज़बानों को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने शुरका का शुक्रिया अदा किया। हमारी यूटी में बल्कि लद्दाख रीजन में भी जो ज़बानें बोली जाती हैं उनको भी शामिल किया था। इसमें डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, लद्दाखी, बाकी ज़बानों में शायरों ने, अफसाना निगारों ने अपने अफसाने पेश किए और शायरी पेश की। बहुत अच्छा रहा ये। इसमें सब ने महसूस किया कि इस तरह के फ़ोरम की। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।